Now we discuss about the workbook activity. Okay, our chapter number 6, cannot survive without food, page number 48. First topic is choose the correct option. First question, what kind of food should we always eat? ओपन, स्टेल, फ्रेश, मार्केट. खुला हुआ खाना, वासी खाना, ताज़ा खाना या फिर बाहर से मिलता है तो कौन सा हमारा आंसर आएगा? सी, फ्रेश फूड. विथ वॉट इज पुलाव मेड? राइस, wheat, bajra, maize. We already seen in our previous video pulao made from rice. What food can a newborn infant have? पूरी सब्जी, मदर्स मिल्क, माइलेट रोटला और रोटी सब्जी. जो छोटे बच्चे हैं वो क्या खाना खाएंगे? तो वो मदर्स मिल्क. ओके. विच आइटम्स इज मेड फ्रॉम व्हीट? इडली, डोसा, खाखरा और पुलाव. इडली, डोसा, पुलाव मेड फ्रॉम राइस, तो आवर आंसर इज खाखरा. हाउ कैन न्यूबॉर्न इन्फेंट सर्वाइव ओनली ऑन मदर्स मिल्क? बिकॉज मदर्स मिल्क इज अ लिक्विड, because mother's milk is easily digest, because mother's milk contain all nutrients, because mother's milk tasted sweets. Our answer is C, because mother's milk contain all nutrients. In which of the following is the nutrition that is obtained from eggs presence? A, rice, B, roti, C, fruits or D, pulses. Our answer is D, pulses. Why was Vipul's grandmother not able to clean the stairs quickly? विपुल की दादी क्यों जल्दी से स्टेयर नहीं चढ़ सकती है? ग्रैंडमदर वॉज अनवेल, ग्रैंडमदर वॉज एज्ड, grandmother's foot was injured, foot was injured, and grandmother was blind. Because our answer is grandmother was aged. उनकी दादी एजेड है. Which oil is used as a cooking medium in Kerala? Groundnut oil, mustard oil, cottonseed oil or coconut oil. In Kerala, people use coconut oil. Which item is made from rice? A, idli, B, puri, C, sira, D, cake. Item made from rice is, our answer is idli. Rice. Item made from rice, our answer is A, idli. Okay, not B. Fill in the blanks. Foods gives blank to our energy. Foods gives energy. Vipul's grandmother दादी like दाल with blank in. उसकी दादी को कैसी दाल पसंद है? दाल with sugar. Blank people cannot eat hard food. Old people. Munni will drink mother's milk up to 6 months because she has no teeth. Any blank juice is helpful in keeping the body from the disease. Bitter. Blank should be a part of children's diet for their proper growth and develop. Pulses. Vipul's grandmother ate roti which was soaked in blank dal. True or false? We should eat the same type of food every day. False. Boiled food is easy to digest. Right. True. Small children should be given fried food. False. We can make shira from wheat. True. Cakes are made from rice. False. Made from wheat, right? Milk is considered as a complete diet. True. We get all nutrition from the milk. We should always eat a full meal at night. False. Match the column. Munni, wheat, Vipul, rice, cauliflower. In column B, vegetable, 4-month-old child, parathas, vadas, boy and dosa. मुन्नी इज़ अ स्मॉल गर्ल. ओके. मुन्नी यानी कि जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें नाम चुटकी था, राइट? तो जो चुटकी है और मुन्नी है वो दोनों एक ही है. उसको बहुत ही छोटी लड़की है तो वो क्या खाएगी? 4 months ओल्ड चाइल्ड. सी इज़ 4 months ओल्ड चाइल्ड. और आंसर. विथ से क्या बनता है? पराठा. विपुल कौन है? बॉय. राइस, डोसा, कॉलीफ्लावर इज़ अ वेजिटेबल. I already explained this exercise in my previous video, right? Which thing made from wheat and which thing made from rice. Now go to the another page, or page number 80. Circle the thing you like to eat often. Rice, wheat, barley, gram, maize,
millet, sago and nagli. Normally we eat rice, wheat and millet. Okay. Our next exercise we already discussed in our video. Now go to the another. Name the various things are given below. Name of the various things are given below. Put a right tick mark against one that can be eaten. Banana flower, no. Drumstick flower, no. Mushrooms, right. Lotus stem, no. Red ants, no. Stale rotis, no. Camel's milk, right. Some cities, okay, some countries they take camel's milk. We take cow's milk or buffalo's milk. Hen's egg, right. अरविज लीव राइट. अरविज लीव यानी कि पात्रा जो हमारी मम्मी बनाती है ना, पात्रा, उसे हम कहेंगे वो अरविज लीव्स है. रेट्स, नो. फिश, यस वी कैन ईट फिश. फ्रॉग्स, नो. आमला, राइट. रोटलो, मेड फ्रॉम बाजरा, राइट. कॉलीफ्लावर, वी कैन ईट कॉलीफ्लावर, इज अ वेजिटेबल, राइट. मीट, नो. ऑनियंस, राइट. क्रैब, right. Grass, we cannot eat grass. Coconut oil, yes. Rotis, yes. Okay, these things we eat. Now go to the another page. Answer the following questions. Why was Dadi not able to clean the stairs quickly? Dadi बूढ़ी हो गई है ना. Since Dadi was aged, she was weak, so she was not able to clean the stairs quickly. How does Daddy like to have her dal? क्या पसंद है उनको? Sugar. Daddy likes her dal to be a little sweet. What kind of dal do you like? आप अपना आंसर खुद लिख सकते हो. I like dal which is a little sweet. Apart from this, I like the dal that is prepared during marriage function. सबको पता है, सबको पसंद है मैरिज की दाल. Write the name of grains. Wheat, bajra, jowar, maize, paddy, barley, millet and ragi are grains. Write the name of pulses. Green gram, peas, arhar, masoor, black gram are pulses. This we already seen in our video. There is one table. Which food items do we usually eat? The food items which we usually eat are roti, bakri, rotla, rice, dal, pulses, milk and its products, vegetables and fruits. ये चीज़ हम रोज़ खाते हैं, यूजुअली खाते हैं. हाउ आर न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम द फूड्स यूजफुल टू अस? न्यूट्रिशंस ऑब्टेन फ्रॉम फूड आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे गिव अस हीट एंड एनर्जी. उसमें से हमें हीट और एनर्जी मिलती है. वॉट टाइप ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट? वी शुड नॉट ईट ओपन, स्टेल और मार्केट फूड. कैसा खाना नहीं चाहिए? खुला हुआ, बासी और बाहर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. लेट्स गो टू द अनदर पेज. स्टेट मुन्नी's diet. Munni's diet is her mother's milk. Okay, that we seen in our video Chutki. The name is Chutki. Instead of Chutki, there is a name of Munni's. वो अपनी मम्मी का मिल्क पीती है. हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलेगा आपको भूख लगी है? आई नो दैट आई एम हंग्री व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी. आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. आई फील वीक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग. जब आपको लगेगा, जब आपको कैसे लग रहा है भूख लगी है? जब आपको स्टमक खाली लग रहा हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको वीकनेस महसूस होती हो और कुछ खाना चाहिए ऐसा लग रहा हो, तब आप हंग्री हो. हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट? इफ यस, वाई? यस, वंस व्हेन माई मदर वॉज डाउन विथ मलेरिया, nothing was cooked in our house for 3 days. As a result, we had to arrange for outside food. क्या क्वेश्चन है? Has it ever happened to you that on some day you were hungry but there was nothing to eat? ओके, जब आपको भूख लगती है लेकिन घर में कुछ भी खाना नहीं पका, ऐसा कब होता है? तो जब भी मम्मी बीमार होती है तभी ऐसा होता है. ओके, कि जब मम्मी को एक बार मलेरिया हुआ था, तब घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं था, तो 2-3 दिनों के लिए हम लोग बाहर से खाना अरेंज कर लिया था. बाहर से हमने. देयर इज़ वन चाइल्ड इन
whose house no food was cooked could be the reason. ओके एक बच्चा है, उसके घर में कुछ भी खाना नहीं पकता है. whose house no food was cooked. तो क्या रीज़न हो सकता है? तो एक रीज़न तो ये हो सकता है, द चाइल्ड्स पेरेंट माइट बी सो पुअर दैट दे कैन नॉट इवन गेट इनफ फॉर 2 meals अ डे. जो वो बच्चा है उनके पेरेंट में भी गरीब हो, पुअर हो कि वो दिन में 2 बार खाना अरेंज नहीं कर सकते हो. सेकंड, द चाइल्ड्स मदर में बी अनवेल. मम्मी अच्छी नहीं हो एंड फादर में हैव गॉन फॉर वर्क. और पापा बाहर काम करने के लिए जाते हैं. ये रीज़न में ही हमारे घर में खाना नहीं पक सकता है. फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क इज़ हर ओनली फूड. वाई? 4 महीने की जो बच्ची है मुन्नी, तो उसका खाना क्या है? उसकी मम्मी का दूध, मदर्स मिल्क. तो उसको उसमें से सब मिलता है. न्यू बॉर्न इन्फेंट्स डू नॉट हैव टीथ. उनको दांत नहीं होते. सो दे ड्रिंक ओनली देयर मदर्स मिल्क. फॉर देम देयर मदर्स मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट. दे गेट ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर मदर्स मिल्क. Why should we eat food? Why should we eat food? To get sufficient energy to perform all bodily function. ओके कुछ सब काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो हमें फूड से मिलती है. टू अलाउ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हमें दूध चाहिए, फूड चाहिए. टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज एंड टू स्टे हेल्दी. और डिसीज तो डिफरेंट डिजीज से भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए. तो एंड हेल्दी रहने के लिए भी हमें फूड चाहिए. ओके, दिस इज़ द रीज़न वाई वी शुड ईट दी फूड. विच न्यूट्रिशंस डू ग्रेन्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड टू आवर बॉडी. चलो कौन ग्रेन्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स किस में से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं? सो ग्रेन गिव्स हीट एंड एनर्जी टू आवर बॉडी. पल्सेस आर यूजफुल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज. देखा, ग्रेन्स से हमें हीट और एनर्जी मिलती है. पल्सेस से हमें हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है. ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारी बॉडी को डिसीज के अगेंस्ट में फाइट करता है. ओके, सो दिस इज द रीजन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वी गेट फ्रॉम ग्रेन, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. What should we do so that our body gets all the necessary nutrition in sufficient amount? हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को सब टाइप के न्यूट्रिशन मिले? To ensure that our body gets all the necessary nutrition in sufficient amount, along with milk, we should include different grains, various pulses and vegetables and fruits according to the season in our diet. हमें सब कुछ खाना चाहिए. मिल्क, उसके साथ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स भी लेना चाहिए. वॉट हैपन्स इफ़ वी टेक द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे? एक ही तरह का खाना रोज़ खाएंगे तो क्या होगा? इफ़ वी टेक द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे, वी डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिशन दैट आवर बॉडी नीड्स. एक ही तरह का खाना रोज़ खाएंगे तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा. एज अ रिजल्ट द बॉडी सफ़र due to deficiency of this thing and get affected by some disease. क्या होगा? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो डिसीज होता है ना वो होएगा. स्टेट द बेनिफिट ऑफ ईटिंग फूड. खाना खाने का बेनिफिट क्या है? द बॉडी गेट्स एन इनफ एनर्जी टू वर्क. द बॉडी ग्रोज एंड डेवलप वेल. द बॉडी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी इज टेकन केयर ऑफ. हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए. उसके बाद वो बॉडी का ग्रोथ होगा. बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीज के सामने हम प्रोटेक्शन भी मिलेगा और बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी. नेम द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड आर रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग और सेलो फ्राइंग. रोस्टिंग यानी सेकना, डीप फ्राइंग अच्छे से तलना, बॉइलिंग और स्टीमिंग बॉईल करना और शैलो फ्राइंग यानी कि थोड़ा ही फ्राई करना. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. मेथड ऑफ कुकिंग एंड टाइप ऑफ फूड. रोस्टिंग करके कौन सा खाना बनता है? तो रोटी, भाखरी, रोटला.
frying पूरी भजिया समोसा, बॉइलिंग और स्टीमिंग खमन खिचड़ी राइस। सैलो फ्राइंग से कौन सा खाना बना सकते हैं, तो पराठा और थेपला। नाउ गो टू द अनदर पेज नंबर 54। Categorize the following habits into good habit and bad habit. Habit is even, we have to categorize them into good habit and bad habit. Chewing properly, good habit. Eating stale food, वासी खाना खाना, bad habit. Eating only what one likes, जो एक ही पसंद है वो खाना, bad habit. Eating only potatoes every day, रोज़ पोटैटो नहीं खा सकते, bad habit. Eating various दाल during the week, good habit. ईटिंग फ्राइड फूड एवरी डे, नो, तला हुआ खाना रोज़ नहीं खा सकते, बैड हैबिट. ब्रशिंग टीथ आफ्टर मील, यस इट्स अ गुड हैबिट. इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन एवरी डे डाइट, गुड हैबिट. वॉशिंग हैंड्स वेल बिफोर मील्स, इट्स ऑल्सो गुड हैबिट. एंड ईटिंग इन अ हरी, नो, ईटिंग इन अ हरी इज अ बैड हैबिट. राइट डाउन द गुड हैबिट एंड बैड हैबिट.